ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ بھوت، چڑیل، زومبیز، چمگادڑ، ڈراؤنی گھنونی چیزوں کا راج ہالووین کی رات کو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہالووین کا آغاز 1840s کے آئرلینڈ میں ہوا تھا، لیکن نارتھ امریکہ میں اس دن کو جوش اور شوق سے منایا جاتا ہے۔ لوگ گھروں کو بہت بڑے پیمانے پر ڈیکوریشن سے سجاتے ہیں، یونیک کاسٹیومز پہنتے ہیں اور گھر پر پارٹیز رکھتے ہیں۔ آج کا سچا قصہ ہالووین کی رات کو وارد ہوا تھا۔ یہ ایک اتفاق نہیں تھا، قاتل نے اس رات کو خاص وجہ سے چنا تھا۔ مزید جاننے کے لیے آگے دیکھتے جائیے۔ یہ ہے دی بگ بیڈ ولف کی کہانی۔ قصہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کا ہے۔ ڈورین رے ہچنز کی پیدائش 29 نومبر 1952 شہر سانتا کلارا میں ہوئی تھی۔ گولڈن بال اور نیلی آنکھوں کے ساتھ وہ میٹھی طبیعت کی مالک تھی۔ ہر وقت مسکراتی ہوئی، سب کے ساتھ اچھے سے پیش آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گھر والے اسے پیار سے اینجل پکارتے تھے۔ ڈورین کا خاندان اچھا خاصا بڑا تھا، وہ زندہ دل لوگ تھے، مل جل کر رہتے تھے۔ ڈورین کی پرسنالٹی بھی ایسی ہی تھی۔ ہائی اسکول ختم کر کے اس نے میڈیکل فیلڈ چنی۔ یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ڈورین نے اپنی فزیکل تھراپی کی کلینک سان فرانسسکو میں کھول لی۔ کام کرتے ہوئے کسی نے اس کا تعارف ولیم مائیکل ڈینس عرف مائک سے کروایا۔ مائک کلینک کے قریب لاک ہیڈ نامی فیکٹری میں اسپریئر کی نوکری کرتا تھا۔ ایئرپلین کے پرزوں پر پینٹ کرنا اس کا کام تھا۔ مائک بچپن کی بیماری کے بعد ایک کان سے بہرا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے ہیئرنگ ایڈز پہننے ہوتے تھے اور کم سنائی دینے سے وہ ہکلانے بھی لگا تھا۔ اس زمانے میں آج کل کی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ ہیئرنگ ایڈز نازک اور چھوٹے سے نہیں ہوتے تھے، بڑا سا آلہ کان میں جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک تار سے جڑی ڈبیا ہوتی تھی جسے جیب میں رکھنا پڑتا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اگر بچہ ذرا سا بھی مختلف ہو تو اسکول کے ساتھی محلے کے بچے اسے جینے نہیں دیتے۔ وہ سب مل کر مائک کا مذاق اڑاتے تھے، اسے تنگ کرتے تھے، بلی کرتے تھے۔ خاموش مزاج کا مائک پہلے سے شرمیلا تھا، اب تو وہ اور بھی چپ رہنے لگا تھا، لوگوں سے دور بھاگنے لگا تھا۔ جوانی میں اس کے بہت کم دوست تھے اور گرل فرینڈ تو تھی ہی نہیں۔ البتہ ڈورین سے ملاقات کے بعد مائک کو لگا کہ اسے ایک بہترین ساتھی مل گئی تھی جو ذہین تھی، خوبصورت تھی، ببلی تھی، بالکل اس کی اپوزٹ تھی۔ جیسے ہم سنتے ہیں opposites attract، اکثر جو لوگ مختلف ہوتے ہیں ان کی آپس میں اچھے سے بنتی ہے، دوسرا الگ اور نیا لگتا ہے، ایکسائٹنگ لگتا ہے۔ بہرحال چند مہینے ڈیٹ کرنے کے بعد ہی انہوں نے شادی کر لی، جھٹ منگنی پٹ وواہ، اور 1 سال کے اندر ان کا ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا جس کا نام پال رکھا گیا۔ مائک جب باپ بنا ایسا تھا جیسے اسے ایک نئی زندگی مل گئی تھی، وہ بے حد خوش تھا۔ لیکن ڈورین اور مائک کا رشتہ شادی کے فوراً بعد ہی بگڑنے لگا تھا۔ ڈورین کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی مختلف تھے۔ مائک خاموشی سے گھر میں بیٹھنے کا عادی تھا، وہ کافی بورنگ تھا، بہت کم بات کرتا تھا، ان کی سوشل لائف مر سی گئی تھی، وہ نہ کہیں جاتے تھے نہ کوئی ان کے گھر آتا تھا۔ پال 1 سال کی عمر کا تھا جب سن 1977 میں ڈورین نے ڈیورس کا مطالبہ کیا اور اسے بچے کی کسٹڈی بھی مل گئی۔ مائک بیٹے سے ویکینڈز پر ملتا تھا، اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ اگرچہ مائک جانتا تھا کہ ڈورین ایک اچھی ماں تھی اور چھوٹے بچوں کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، طلاق نے اسے کڑوا اور تلخ کر دیا تھا۔ دوسری طرف ڈورین نے تیزی سے زندگی کا رخ بدل لیا تھا اور بہت جلد اس نے شہر کے قالین کے دکاندار چارلز اربرٹ سے شادی کر لی۔ سن 1979 میں ان کی بیٹی ڈیانا بھی پیدا ہو گئی۔
माइक उनके घर से सिर्फ 6 मिनट के फासले पर रहता था। उसे डोरीन और चार्ल्स बच्चों के साथ कभी पार्क में खेलते हुए, कभी रेस्टोरेंट में खाते हुए नजर आते थे। माइक उनकी प्यार भरी जिंदगी देखकर आग बगोला होता था। डोरीन अपने नए शौहर और 2 बच्चों के साथ बेहद खुश थी, लेकिन खूबसूरत सुनहरे दिन गिनती के बाकी थे। अचानक एक हौलनाक हादसे के साथ सारी खुशियां तबाह हो गईं। फरवरी 1980 की एक सुबह चार्ल्स नौकरी पर गया हुआ था, बच्चे सो रहे थे और डोरीन घर की किसी काम में मसरूफ थी। 4 साला पॉल की नींद होशियार हुई। वो दबे पांव बैकयार्ड में चला गया। घर के बैकयार्ड में एक बड़ा स्विमिंग पूल था। बच्चों की हिफाजत के लिए चार्ल्स ने स्विमिंग पूल के अतराफ फेंसिंग लगाई हुई थी। पॉल ने फेंसिंग फलांगकर स्विमिंग पूल में छलांग मार दी। पॉल तैरना नहीं जानता था। थोड़ी देर बाद डोरीन बच्चों को जगाने गई तो उसे पॉल का बिस्तर खाली मिला। उसने पूरा घर छान मारा और जब उसे पॉल मिला, बहुत देर हो चुकी थी। वो स्विमिंग पूल के फर्श पर पड़ा था। एम्बुलेंस के आते ही पैरामेडिक्स ने CPR करके पॉल के दिल को चालू किया। उसे अस्पताल ले जाया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया। 3 दिन बाद पॉल का इंतकाल हो गया। जाहिर सी बात है, पॉल की मौत पर डोरीन जो माँ थी वो दुख से बेकाबू हो गई। सारे खानदान वाले ही गमगीन थे, लेकिन माइक को लगा कि उसके सर पर सदमों का पहाड़ टूट गया था। उसने डोरीन को बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया। कुछ अरसे बाद माइक ने चार्ल्स और डोरीन के खिलाफ रॉन्गफुल डेथ का मुकदमा दर्ज करवाया। रॉन्गफुल डेथ में किसी को गफलत या लापरवाही की वजह से मौत का जिम्मेदार ठहराया जाता है। अक्सर जिस पर इल्ज़ाम लगता है उसे विक्टिम की फैमिली को जुर्माना अदा करना होता है, पैसे देने होते हैं। मार्च 1982 केस अदालत तक पहुंच गया, लेकिन जज ने डोरीन और चार्ल्स के हक में फैसला सुनाया। केस डिसमिस्ड हो गया। माइक को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। अगले 2 सालों में माइक मजीद डिप्रेशन का शिकार होता गया। उसे नौकरी पर डिमोट कर दिया गया, जिसकी वजह से उसकी तनख्वाह, उसकी सैलरी में कमी की गई। लेकिन अर्बर्ट फैमिली के यहाँ कई सदमात के बाद जश्न मनाया जा रहा था। अप्रैल 1984 में डोरीन ने रिश्तेदारों और दोस्तों को बताया कि वो प्रेग्नेंट थी। ये प्रेगनेंसी उसके लिए ख़ास थी क्योंकि पॉल की मौत के बाद उसके 2 मिसकैरेजेस हुए थे। डोरीन ने सबको बताया कि इस बेबी की ड्यू डेट नवंबर में थी। 30 अक्टूबर 1984 डोरीन तकरीबन 8.5 महीने प्रेग्नेंट थी। उसने अपनी बहन के साथ डिनर किया। बहन ने 5 फुट लंबी डोरीन से मजाक में कहा, जितनी तुम्हारी हाइट है उतना ही तुम्हारा पेट चौड़ा होता जा रहा है। 31 अक्टूबर 1984 हैलोवीन की रात 7:30 बजे डोरीन 4 साला डियाना को मोहल्ले में ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए लेकर गई। चार्ल्स की जिम्मेदारी घर पर रहकर कैंडीज बांटने की थी। 1 घंटे बाद डोरीन और डियाना घर वापस आ गईं। 8:50 पर चार्ल्स सारी कैंडीज बांट चुका था। उसने डोरीन से कहा, मुझे बियर खरीदना है, मैं अभी आता हूँ। जब चार्ल्स सिर्फ 15 मिनट बाद घर लौटा, उसने गौर किया कि घर के दरवाजे का लॉक खुला था। वो घर में दाखिल हुआ तो उसे एक भयानक मंजर मिला। हर जगह खून ही खून था। जमीन और दीवारों पर, शैंडलियर पर, हॉलवे के एक स्टूल पर जिस पर डेकोरेशन का पंपकिन रखा था, सब चीजों पर खून के छींटे थे। डोरीन लिविंग रूम के पास जमीन पर खून के तालाब में पड़ी थी। चार्ल्स ने नजर उठाई तो सोफे पर उसे खून आलूद बेबी दिखा। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि शायद डोरीन का मिसकैरेज हो गया है, लेकिन ये ख्याल सिर्फ 2-4 सेकंड्स में दूर हो गया क्योंकि चार्ल्स को डोरीन का कटा हुआ हाथ नजर आया जो कमरे के दूसरे कोने में पड़ा था।
चार्ल्स ने डोरीन का बाजू पकड़ा और खून रोकना चाहा। उसने गौर किया कि डोरीन के जिस्म पर बेशुमार कट लगे थे, गर्दन पर, सर पर, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही उसके पेट पर हुई थी। उसकी आंतें दिखाई दे रही थी। उससे ऐसे चीरा फाड़ा गया था जैसे कि ये हमला किसी जंगली जानवर, शेर या भेड़िए ने किया हो। सबसे बड़ी हैरत की बात यह थी कि डोरीन जिंदा थी। फर्श पर इतना ज्यादा खून था कि जब चार्ल्स फोन की तरफ लपका वो फिसल कर गिर गया। उसने पहले 911 डायल किया लेकिन किसी वजह से नंबर नहीं मिला तो उसने फायर स्टेशन कॉल की। चार्ल्स ने फिर डियाना को तलाश किया। शुक्र है कि वो जिंदा थी और सही सलामत थी, सोफे के पीछे छुपी थी। रात के 9:15 बजे फायर फाइटर्स, पैरामेडिक्स और पुलिस अफसरान वहां पहुंच गए। आते ही उन्हें चार्ल्स नजर आया। उसका दीवानों वाला हाल था और वो धाड़े मार कर रो रहा था। जब पैरामेडिक्स डोरीन को एम्बुलेंस में ले जाने लगे तो चार्ल्स ने बीवी के साथ जाना चाहा। उसे जबरदस्ती रोका गया क्योंकि पुलिस की तफ्तीश शुरू हो चुकी थी। अफसरान को अंदेशा था कि चार्ल्स ने ही अपनी बीवी पर हमला किया होगा। डिटेक्टिव्स ने गौर किया कि उसके कपड़े खून से तर थे और उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अगले 1 घंटे तक पेट्रोल कार में हथकड़ियां पहनाकर बिठा दिया गया। इसके चंद मिनट बाद ही इत्तला पहुंची कि डोरीन ने अस्पताल के रास्ते में दम तोड़ दिया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने घर की तलाशी ली। सोफे पर चार्ल्स और डोरीन के अनबोर्न बेटे की लाश पड़ी थी। कातिल ने उसकी गर्दन, टांग और उसके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए थे। घर से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, अलबत्ता घर की सीढ़ियों के पास एक भेड़िए का मास्क पड़ा था जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और नोकीले दांत थे और जुबान बाहर लटक रही थी। फोरेंसिक टीम ने घर से फिंगरप्रिंट्स और खून के सैंपल इकट्ठा किए। अफसरान ने चार्ल्स और उसके पड़ोसियों से पूछगछ की। सब ने कहा कि डोरीन का दुश्मन तो सिर्फ एक ही था, उसका एक्स हस्बैंड विलियम माइकल डेनिस, जो माइक के नाम से पहचाना जाता था। डिटेक्टिव्स की एक टीम 2 मील दूर माइक के घर पहुंची। अफसरान ने गौर किया कि ड्राइववे में एक ट्रक खड़ा था। किसी डिटेक्टिव ने फ्लैश लाइट की रोशनी ट्रक पर डाली। स्टीयरिंग व्हील और गियर शिफ्ट पर खून लगा था। पुलिस ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन बहते हुए पानी की आवाज आ रही थी और घर की लाइटें खुली थी। थोड़ी देर बाद माइक बड़े इत्मीनान से बाहर आया। उसने बाथरोब पहना हुआ था, उसके बाल गीले थे। अफसरान ने माइक को एक्स वाइफ के कत्ल की इत्तला दी। उसका चेहरा एहसास से खाली था, उसका कोई रिएक्शन नहीं था। माइक ने कहा, अंदर आ जाएं, आराम से बात करते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने गौर किया कि उसके दाएं हाथ यानी राइट हैंड पर एक पट्टी लगी थी। पूछने पर उसने बताया, ओह ये मैं छुरी से खेल रहा था, उससे हवा में उछालकर गलती से तेज सिरे से पकड़ लिया, मामूली सा कट आया है। डिटेक्टिव्स ने घर की तलाशी ली। जगह जगह खून के कतरे गिरे हुए थे। एक अदद कवरऑल्स, पेंटर्स का यूनिफॉर्म मिला जिस पर ताजे खून के धब्बे थे। माइक को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। घर की मजीद छानबीन के दौरान एक हार्डवेयर स्टोर की रसीद मिली और एक लेबल मिला जो 18 इंच लंबी मशेटी की खरीदारी का सबूत थे। माइक के घर के गैराज में हाथ से बने हुए 2 ताबूत मिले। बड़े वाले पर चार्ल्स का नाम नक्श किया गया था, छोटे वाले पर डोरीन। करीब में ये चीजें पड़ी थी, 2 बॉडी बैग्स जिनमें लाशें रखी जाती हैं, चंद लोहे के वेट्स और एक सैन फ्रांसिस्को बे का नक्शा यानी मैप। पुलिस को शुबा था कि माइक उस रात डोरीन और चार्ल्स को कत्ल करके उनकी लाशें सैन फ्रांसिस्को बे में फेंकना चाहता था। डोरीन के घर की सीढ़ियों पर मिलने वाले भेड़िए के मास्क के बारे में तफ्तीश की गई। माइक की एक जानने वाली ने कहा, 1 साल पहले मैं एक हैलोवीन पार्टी में गई थी, माइक वहाँ मौजूद था, वो भेड़िया बनकर आया था, उसने यही मास्क पहना था, लोगों ने उसकी तस्वीर भी खींची थी। तस्वीर ढूंढी गई, माइक
वही मास्क पहना हुआ था जो डोरीन के घर से बरामद हुआ था। माइक का मुकदमा जुलाई 1988 को शुरू हुआ। गवाह के तौर पर कई राहगुजर पेश किए गए जिन्होंने कहा कि उस रात उन्होंने डोरीन के घर के सामने एक आदमी को देखा था जो वुल्फ मास्क पहने हुए दरख्त के नीचे खड़ा था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। आदमी के हाथ में एक थैली थी जिसके अंदर कोई वजनी चीज थी। छोटी डियाना जो माँ की मौत के वक्त 4 साल की थी, अब वो 8 साल की उम्र को पहुंच गई थी। डियाना ने गवाही दी कि चार्ल्स के दुकान जाने के चंद लम्हे बाद ही घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। डोरीन ने दरवाजा खोला। एक आदमी भेड़िए का मास्क पहने हुए खड़ा था। आदमी ने कहा, मैं तुम्हें जान से मारने आया हूँ। डोरीन ने चिल्लाया, यहाँ से दफा हो जाओ। उसने दरवाजा बंद करना चाहा और डियाना से छुपने को कहा। डियाना भागकर सोफे के पीछे छुप गई थी। अदालत के सामने फोरेंसिक एक्सपर्ट ने ब्लड टेस्ट का रिजल्ट पेश किया। उस जमाने में DNA टेस्टिंग इजाद नहीं हुई थी, पर ब्लड टेस्ट से वाजे हुआ कि क्राइम सीन पर पाया गया खून माइक के ब्लड टाइप से मैच करता था। माइक ने डोरीन और उसके बच्चे के फर्स्ट डिग्री कत्ल का एतराफ़ कर लिया। उसे गैस चेम्बर के जरिए सजाए मौत की सजा सुनाई गई। माइक अभी भी सैन क्वेंटिन डेथ रो जेल में अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। चार्ल्स और डियाना को हाल में टीवी चैनल ने इंटरव्यू किया। उस मौके पर चार्ल्स ने ये बयान दिया है, हमने माइक को माफ कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि वो जान ले कि उसने हमें फतह नहीं किया है, तोड़ा नहीं है। हम सर्वाइवर्स हैं। दोस्तों, ये थी द बिग बैड वुल्फ की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना